رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہا انہا چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصاری پر اس نصارہ لیے خدا یہود و یہود نصارہ پر یہود و نصارہ پر اس لیے خدا کی لعنت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا، اور اولیاء صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریب وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے، یعنی یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحات حیات میں زبان رسالت پر الصلاح کے کلمات جاری رہے۔ کبرا لکھا ہوا ہے۔ خصائص کبریٰ، یہ بھی کوئی کتاب سیرت کی خصائص تھی۔ کبرا۔ وفات کی خبر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں۔ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی قیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کو کچھ ہوش آیا۔ پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا، کیونکہ دوسرے دینی و دنیوی معاملات کے خلل اور بیرونی و اندرونی دشمنوں کے حملے کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز 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 و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری تھا۔ اس قضیہ قضیہ کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی اور میں پیر کے دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا۔ بدھ کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ قبر شریف حدیث کے موافق صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی۔ تو جب اختلاف ہونے کے بھی کہاں دفن کیا جائے تو پھر حدیث بیان کی کہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کا انتقال ہو وہیں پر اسی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بات ابوبکر ہی کو معلوم تھی، اور جو پیچھے بات آئی کہ آپ علیہ السلام موت کے وقت، موت سے پہلے زبان پر کلمات جاری تھے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ السلام اما ملکت ایمانکم، اس میں دونوں باتیں ہیں، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی۔ صلات سے مراد اللہ کا حق ہے، اما ملکت ایمانکم سے مراد بندوں کے حقوق جو تم پر ہیں۔ اچھا چلیں آگے۔ اچھا استاد محترم، وہی کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا جو ہے نا نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی،
हाँ, जनाजा नहीं पढ़ा गया था, बल्कि पहले आपके अहले बैत आए, फिर दूसरे हजरात ऐसे आते रहे और दुरूद शरीफ पढ़ के चारपाई के पास से जाते रहे हैं। जिस तरह हम जनाजा पढ़ते हैं ना, इस तरह जी उस्ताद जनाजा जी, नहीं, कहना वही रहता था। है। जी, चलें आगे। इसकी मैं क्या पढ़ूँ वजह उस्ताद है आगे? जनाजा ना पढ़ने की, जनाजा ना पढ़ने की, जी, जनाजा न पढ़ने की क्या वजह है? खास तो मालूम नहीं क्या, क्योंकि जनाजे में तो अल्लाह वालम इसकी कोई गुजरी नहीं है, लेकिन मालूम करना पड़ेगा क्या वजह थी। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ाते रहे अपनी जिंदगी में जी जी नमाज जनाजा। तो या तो इनको जी, जरूरत नहीं है, नमाज जनाजा का मकसद मकसद है कि बख्शिश की दुआ करना, शायद इनको हाँ, जरूरत नहीं थी बख्शिश की दुआ की लोगों की। मालूम करना पड़ेगा अल्लाह वालम की। ठीक है। नमाज में कर लेते हैं, उस्ताद जी आगे मैं पढ़ूँ? जज़ाकल्लाह। पूरा कर लेना ये, फिर तू कुछ रह गया। जी उस्ताद आयत जी। और चल साहब कहाँ चले गए, ये पूरा कर लेना, पहले थोड़ा सा रह गया था। फिर नबी, जी सर जी जी पढ़ता हूँ। आप पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व हसाइल व मौजूदात अखलाक शरीफा। ऊपर कुछ है? दो कुछ लाइनें बोला? पीछे हैं, बाकी 3 लाइनें। हाँ, जी दो जी। लाइन। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसरन बयान करने के बाद मुनासिब मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा का कुछ हिस्सा मुख्तसरन पेश कर दिया जाए। शायद खुदावंद करीम हम सब को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा ज़ालिका अला अल्लाह बिग़ैज़ भी अजीज। बिअज़ीज़। चलें पढ़ें आगे, कौन पढ़ेगा? जी मैं मार्शद पढ़ूँ? पढ़ें। पढ़ो उसको जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व खसाइल और लफ्ज़ मौजज़ात। अखलाक, लफ्ज़ अखलाक, खुल्क आप की जमा सल्लल्लाहु अलैहि अखलाक। वसल्लम, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व खसाइल व मौजज़ात। अखलाक शरीफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शुजा और बहादुर और सबसे ज़्यादा सखी थे। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया जाता तो फौरन अता फरमा देते थे। सबसे ज़्यादा हलीम और बुर्दबाद मुर्दबात थे। यहाँ तक कि सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने कुफ़ार की एक कौम के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो उनके मुतल्लिक़ बद्दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रहमत होकर आया हूँ, अज़ाब बनकर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया गया, मगर उस वक्त भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत ही फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हयादार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह किसी के चेहरे पर ना ठहरती थी। ये अपनी जो ज़ाती मामलात। ये जो वाक़या ना, ग़ज़वा उहद का वाक़या है। जब आपके वगैरह शहीद हुए तो साहबा या सलाह, तो आपकी कौम ने बड़ी आपको तकलीफ पहुंचाई है, आप इनके लिए बद्दुआ करें। तो आपने फरमाया अल्लाह मग़फ़िर लि कौमी वहुम ला यअलमून, अल्लाह महदिनी कौमी, अल्लाह मेरे कौम के दादे मुझे जानते नहीं। तो उस वक्त का ये वाक़या है। चलें। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह किसी के चेहरे पर ना ठहरती थी। अपनी ज़ाती मामलात में किसी से इंतकाम ना लेते थे और ना गुस्सा होते थे। हाँ, जब हदूद खुदाबंदी पर दस्त अंदाजी की अंदाजी। जाती अंदाजी की जाती तो गुस्सा आता था, और जब गुस्सा आता था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ठहर ना सकता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में अख्तियार दिया तो हमेशा उनसे आसान को अख्तियार फरमाया ताकि उम्मत के लिए सहूलत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, अलबत्ता अगर मरगूब होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगा कर ना खाते और ना मेज़ पर बैठ कर खाते, ना सीने पर, और ना कभी आपके लिए पतली छिपाती पकाई गई ककड़ी ककड़ी, खरबूज ककड़ी खरबूजा को खजूर के साथ खाया करते थे। सही, ककड़ी जो है ना वो खीरा होता है वही। खकड़ी होती है ना, खकड़ी नहीं,
खीरा तर खीरा कहते हैं, तर तर नहीं खकड़ी खरबूजा होता है। तरबूजा। अच्छा, तो खरबूजा ये ठंडा हो गया, खजूर गर्म मेरी हो गया बात है। इसमें। नहीं जी। उस्ताद अच्छा, जी। कहते हैं ककड़ी, खीरे को कहते हैं जब। अच्छा, जी जी। एक उस्ताद जी होती है जो तारे लंबी 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 होती है, क्या कहते हैं? जी जी, तार खीरा कहते हैं। नहीं, वही कोई खीरा तार तो होती है। है। हाँ, एक और खकड़ी एक और भी होती है जो अपना, ये ना गर्मियों के मौसम में आती है थोड़ी सी। वो लंबी अ, गोल सी जो होती है खीरे की तरह। खीरे से जी ना, वो खीरे खरबूजा से होता है। मोटी, खीरे से मोटी होती है और पीली होती है, पक जाती है, पीली खट्टी खट्टी भी होती है। हमारा तो पंजाब में उसे खकड़ी कहते हैं। हम फुट कहते हैं जी उसको। फुट 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 फुट, जी हाँ। उस्ताद मोहतरम, जी जो मुफ्ती तारे मसूद नहीं है, मुफ्ती तारे मसूद, जी जी। उनका बयान हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खीरे को खजूर के साथ खाया करते थे, क्योंकि जो है ना जो खीरा होता है ये ठंडा होता है उस्ताद जी, और खजूर जो है ना खुश्क होती है। इसका मिजाज गर्म होता है ना, खजूर का मिजाज गर्म है और वो जी तो ठंडा इसको है, तो खाया, इसका मिजाज। जी तो खजूर के साथ खाया करते थे तो वो ठंडी हो जाती, जो है ना खीरा ठंडा हो जाता। हाँ, सुनना उस्ताद सुनना जी हो जाएगा सर। खरबूजा भी तो गर्म होता है ना जी। खरबूजा। हाँ जी। अच्छा। उस्ताद जी मेरे खरबूजा हिसाब खाने से ये के दो बाद नींद लिखे बड़ी हैं। आती है जी। जी दो लिखे हुए हैं, ककड़ी खरबूजा। ककड़ी खरबूजा को खजूर के साथ खाया करते थे, शहद और तमाम शीरें को तबअन पसंद फरमाते थे। अच्छा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ने जो की रोटी भी पेट भर कर नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर 2 महीने साफ इस तरह गुजर जाते थे कि चूल्हे में आग जलाने की भी नौबत न आती थी, बल्कि सिर्फ छुआरों और पानी पर गुजारा होती थी, गुजर होती थी। इसे कहते हैं, उस्ताद जी, इसे कहते हैं उस्ताद जी असवदेन। गुजारा एक होता था। जी उस्ताद जी एक सवाल है। ये जो जी अहले बैत है, ये जी जी। अहले बैत घर वाले हैं या वो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, वो भी नहीं शामिल है नहीं, ये उनमें? इससे घर वाले मुराद हैं अक्सर। वरना यानी कि अहले वो, बैत जो हैं, भाई बैत घर को नहीं कहते, बैत घर को अहले कहते बैत हैं से और मुराद है अहले घर वाले, बैत हुजूर उनको के, यानी कि हज़रत फातिमा और ये अज़ा मुताहरात, ये सारे मुराद हैं इसमें। बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता खुद सी लेते और कपड़ों में पेमन खुद लगाते थे। अपने जी अहले बैत के रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के कारोबार में रहते थे, मरीजों की इयादत करते थे। जब कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता, ख्वाह वो अमीर होता या मुफलिस, उसके यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। किसी मुफलिस को उसके फ़कीर फ़िक्र की वजह से हक़ीर न समझ जानते थे, और किसी बड़े से बड़े बादशाह से उसके मुल्क की वजह से मरऊब ना होते थे। अपने पीछे अपने गुलाम वगैरह को सवार कर लेते थे, मोटे कपड़े पहनते थे और घाटे घट गुड। घट- घट- घुटे हुए घुटे हुए जूते पहन लेते थे। सफ़ेद कपड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद थे। कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करते और बेकार बातों से इज्तनाब फरमाते थे। नमाज को तवील और खुतबा मुख्तसर पढ़ते थे। गुलामों और मुफसलों के साथ चलने फिरने से परहेज न फरमाते थे। कभी कभी हंसी और खुशतबी की बातें फरमा लेते, लेकिन इस वक्त भी वाक़े के खिलाफ ना बोलते थे। तमाम इंसानों से ज़्यादा खंदा पेशानी और खुश खल्क थे। उज़र ख्वाह का उज़र कबूल फरमा लेते थे उज़र ख्वाह का उज़र कबूल फरमा लेते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क खुल्क कुरान मजीद था, यानी जिस चीज़ को कुरान पसंद करता आप वसल्लम भी पसंद फरमाते थे, और जिस चीज़ को कुरान पसंद ना करता था उसको आप वसल्लम भी नापसंद फरमाते थे। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप वसल्लम की खुशबू से बेहतर कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। जिस दिन हमने ये पढ़ी हैं आदात मुबारक, सुन्नत आदत, आदात है ये ना, एक है सुन्नत इबादत और एक है सुन्नत आदत। ये सुन्नत आदत हैं, आदात की सुन्नतें हैं, इनको भी अपनाना चाहिए, इंशाल्लाह। इनको भी
اور ہاں جو آدمی کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے قوا کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو تمنا تو ہو، اگر آدمی کے بس میں نہ ہو تو اس پہ آدمی کی تمنا ہو کہ یار ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، لیکن جو آدمی کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہاں جس میں طبیعت آدمی کی کمزوری کا وہ ہو، اس کو تمنا ہو لیکن اس کو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ سنت عبادت میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کوئی عبادت سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور پھر اس کا بعد ہے مستحب۔ ہمارے بڑوں نے مستحب سے آگے تجاوز نہیں کیا، فرض، واجب اور سنت اور مستحب، سمجھ گئے؟ فرض، واجب، سنت اور مستحب، اس سے آگے میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش ہو کہ مباح کے اندر نہ پڑیں۔ مباح جو ہے نا، یہ مباح یہ سرحد ہے، حد ہے، سرحد کے پاس ہی نہ جائیں، تو مستحب کام کرنے چاہیے۔ تو ہم نے سنا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے رات کو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا، اور بہت ان کی عبادات تھیں اور بہت ان کے مجاہدے تھے، کتنے دن میں کئی سو نوافل اور رات میں کئی قرآن پاک ختم کرنا۔ ان سب کو ہم استحسان اچھا سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ اچھا سمجھیں کہ ہمارے بڑوں نے بہت اچھا کیا۔ اب چونکہ ہم اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہی ساری رات کھڑے رہیں، ساری رات قرآن پڑھیں اور پورے دن نوافل پڑھیں، تو اگر ہم ان چار چیزوں کو اپنا لیں گے، فرض کو، واجب کو، سنت کو، مستحب کو، ان کو لازم پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ انہیں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اللہ کے انشاءاللہ۔ ذات۔ ہاں تو بس نہ کریں، ساتھی کچھ نماز کے لیے چلے گئے۔